Today we will start this chapter, simplification using K-map. Actually, this chapter is very important in the point of view of your examination, board examination, because in computer science, the your question paper will have three parts. Okay, so in second part, section A, there will be one question, that is question number 4, and in this question, one function will be given to you, not programming function, it is a different, and this function you had to reduce in sum of product or product of sum by using K-map. So what is the K-map? Actually, just try to understand or go behind. There are so many questions like simplify the following Boolean equation using Boolean law. You have used mm, many Boolean laws, commutative laws, associative law, distributive law so many times, and uh, so many theorems we have used. Okay, so now the another way to reduce the equation is K-map. So we will start this chapter now. What is the K-map? For introduction of this using K-map, I'm just telling you the question number 4 is this chapter will cover your 10 marks. So you have to simplify the function using K-map, that stands for 4 marks, and after when you will get the answer, and then for that answer, for that equation, you have to draw the logic diagram. So that logic diagram stands for 1 mark. So 4 plus 1 becomes 5. So this is one part of this question number 4. And the second part, that is B, is also there. You have to draw the logic diagram for product of sum, and you will get the 4 marks, and after reducing it, what equation comes, you have to draw the logic diagram, that is stand for 1 mark. So A part is for 5 marks and B part is for 5 marks, it becomes 10 marks. So it is very important. So students, be careful, be attentive, and let us go with this chapter. It is very important, very easy, and um, very constructive also. Now come to now. Should I tell you one thing? Just to see, I'm writing here for example one function, and the function will be like I'll tell you first. That will be better. That function will be like f. It is f a plus b, या comma लगा b comma c, okay, d is equal to sigma, bracket begin, 1 comma 2 comma 3 comma 5, something like that. This is called function here. So what you have to do, you have to see how many variables are there. 4 variables. So you have to use 16 boxes for K-map. How 16 boxes? Just you have 16 cells, you can say, like a 4 into 4 array, you can say, 4 rows and 4 columns. So you have to draw the K-map like this way: 1 2 3 4, 1 2 3 4, and after this you just write down here. So A B, this one right there, A B, and this CD here, CD like
this way. You have to draw like this. So it is called K-map. After this, you have to give the numbering of rows and numbering for columns, then labeling for rows, labeling for columns, and like this way. So you means should I tell you explain? I'll explain you. Then we will go through. So first, give the number of this. So you have to give the number 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Oh, sorry, 0, 0, 0, 1. Okay, so you have to cut this. Mm. Sorry. Hmm. 0, 1, 1, and 1, 0. And after this, you had to write here these variables here, A, B. So A is 0 and B is 0. That means what you had to write? A naught, B naught. Okay, here A naught, B. Here A, B. Here A, B naught. Like this way. And here C naught, D naught here. And here C, D naught. Here CD. Here C, D naught, like this way. And after this, you have to write the number, give the number to these boxes. So you have to write the 0, 1, 3, 2, 4, 5, okay, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, and 10, like this way. So now you have to fill the, you have to see, after this you have to see these numbers 1, 2, 3, 5, and you have to fill 1 because it is a sigma 1 here, 1 is here, okay, 1 here, 2, 1 here, 3, 1 here, 5, like this way. So I'll explain you now thoroughly. So this is one example I have given how it will be solved. Let us start. We will understand afterwards. Yes. Now move to the chapter. Yes. Yes. K-map. So Maurice Karnaugh, born 14 October 1924, is an American physicist, mathematician, and inventor known for the Karnaugh map used in Boolean algebra. Okay, so this is the picture of this man, great man, and some information about the career of this man is also I have written here. You just read it and inspired with him and do something like this way. Okay, let us move forward. You can read it. What is a K-map? So K-map is two-dimensional graphical representation, as I have shown you, of the input and output conditions, which can minimize the Boolean expression involving 2, 3, and 4 variables. Here, variables, these are not the variables like int a is equal to 10, b is equal to. So I have already shown in our example that some variables a, b, c, d, 4 variables were there. So these are the variables. Okay, so some application of K-map is also given. The application, what are the application? Design and implementation of a digital circuit. So when we want to design, we want to implement the digital circuit, then we use the K-map. And K-map are used in simplification half adder and full adder circuits. So these are the advantages. Advantages of K-map application and the advantages of the K-map. Advantages like simplified circuit can be built using K-map. So because we will reduce the Boolean equation, so that will be very simple in circuit form. Using K-map, logical operation is fast.
Very true, because variables will be very less. Deriving at least at the simplest expressions helps in reduction of instruction software application. Now, disadvantage of K-map. K-map depend on variable in an expression, and hence the simplification process become complex with the, because variables, sometime variable increases, then it is little complex. Now come forward. Let us start to understand how to simplify a equation using K-map. Now try to understand. Suppose if there are two variables, then for two variables, you can see here, if there are two variables, then that means 2 raised the power n. N means number of variables. So here you can see here 2 raised the power n. If two variables, so how many boxes will be needed? So 2 is equal to 2 into 2, that is 4 boxes. So we have to draw K-map like this way. Okay, if there are 3 variables in equation, then K-map there will be 8 boxes. How? Why 8? 2 raised the power 3 means 8. Just why 8 boxes? If there are 4 variables, then 16 boxes. Understood? So come forward. So I have explained you here like this way. It is, I think, clear for you. Okay, it is very clear to you. Okay, now come. In exam of 12th class, the question comes to draw K-map based on 4 variables. 2 and 3 का नहीं आता, और वो आता है आपका 4 वेरिएबल्स का. इन 4 वेरिएबल्स के मैप देयर आर रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, रोज कॉलम्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया है ना. तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ. कैसे? देखो, स्टेप 1 क्या करना है आपको, है ना. स्टेप 1 में ड्रॉ द के मैप. 16 सेल्स का पहले ड्रॉ बना लो, जैसे ये बनाया. याद करो, मैंने बताया था आपको, है ना. याद करो, बॉक्स बनाओ. ये इस टाइप से बॉक्स बना लो. ये बन रहा है, ये ऐसे ऐसे ये बना लो. ठीक है, इस तरीके से ये बना दो, और उसमें एक लाइन ऐसे खींच दो. यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी और डी ऐसे लिख देंगे. ओके, बना दिया. स्टेप 2 पे क्या करना है? नाउ गिव द नंबर टू रोज एंड कॉलम्स. जो ये आपके रोज हैं, ये आपका है रोज, और ये क्या है आपका कॉलम्स. वी विल गिव द नंबर टू रोज एंड कॉलम्स इन बाइनरी फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म जानता है ना. हमें तो ऐसे. ओके, जरा मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि डेसिमल नंबर 0 1 2 3 है. अगर मान लो आपकी ये रोज है, रोज कौन सी होगी? 0 होगी, है ना. ये कौन सी रोज होगी? 0. ये होगी 1. ये कौन सी? 2. ये होगी 3. तो इस तरह से इसको नंबरिंग करने के लिए हमने बताया है इसको. तो जरा देखें, तो 0 1 2 3 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1. अब इस बाइनरी को हमें आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना होगा. तो ग्रे कोड एक इस तरीके से ASCII कोड, यूनिकोड, बाइनरी कोड, इस तरह से एक ग्रे कोड भी होता है. लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, तो यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. कभी फिर जब मौका होगा तो फिर करेंगे. तो ग्रे कोड कैसे लिखा जाता है? उसमें क्या होता है कि ग्रे कोड में 2 बिट्स चेंज नहीं होती, एक ही बिट चेंज होती है, एक एक करके बिट चेंज होती है. तो आप सिर्फ सिंपल इतना समझ लो कि 0 0 ग्रे कोड में कहलाता है 0 0, राइट. 0 1 कहलाएगा अब 0 1 1 0 1 1 और 1 1 1 0. एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा नंबरिंग है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये स्वैप हो गई, ये ऊपर चली गई, और 1 0 जो है वो नीचे आ गई रूप में. ये हुआ है. ठीक है, चलिए आगे आगे स्टेप देखते हैं. यस, यहाँ पर देखो, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी.
क्लियर? अब साफ एकदम आपको समझ में आ रहा है। हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? गिव द नंबर टू ईच सेल एंड योर के मैप विल लुक एज फॉलोज। अब आप देखो, इसको देखो, हर बॉक्स के राइट कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर पर आप लिखो इसको 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। इस तरीके से आप लिख लो। ये आपका यहाँ तक बन गया स्टेप 3 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हैव गिवन नंबर लाइक 0 1 3 2, रो 0 में हमने लिखा था 4 5 7 6 4, क्यों लिखा है ऐसा? तो उसको भी समझ लो। मैं ही आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, तो आपको आपको ठीक लगेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ आपको कि ये 7, ये जो 7 है, ये 7 वाला बॉक्स जो है, इसकी लोकेशन बताइए आप, तो आप क्या कहोगे कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है? इस रो में और इस कॉलम में। इस रो का नाम क्या है बताइए? 0 1, तो 0 1, और इसके कॉलम का क्या है? 1 1 1 1। अब इसको देखो, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 7। ये मतलब है। आप 13 ले लो, ये वाला ले लो। इसकी रो कौन सी है? 1 1, ओके। कॉलम कौन सा है? 0 1। बच्चों, 1 1 0 1 क्या कहलाता है? 13। इस तरीके से हमने, तो ये 0 हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये 0 0 0 0 है, राइट? ये 0 1 कैसे? 0 0 0 1। 3 क्यों लिखा? 0 0 0 0 0 1 1। इस तरीके से हमने नंबरिंग की है। क्लियर हो रहा है आपको? इस तरीके से मान लो हमने 10, इसको 10 क्यों लिखा? इसको 10 क्यों लिखा? देखो 1 0 रो और कॉलम कौन सा? 1 0 कॉलम। सो 1 0 1 0 क्या कहलाता है आपका? 10। याद करो, हमने 11th में स्टडी किया था कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। मैंने बोला था कि 16 तक, एटलीस्ट 20 तक आप डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स को याद ही कर लो, फास्ट आप हो जाता है उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना बॉक्स आपने बना लिया, गुड। आगे बढ़ो, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। ओके, the answer is one cell is located at row 0 0 and column 0 0, and so first cell is given number 0. Same way, second cell located at row 0 0 and column 0 1 and 0 0 0 1 known as 1 in binary, third cell, and so on. Clear, I think? So you can read it afterwards whenever you are going to solve other questions. Now step 4, label the rows and columns as follows. Here we have to know that we want to reduce sum of product and product of sum. If we need to reduce sum of product, we know that in sum of product we use mean term, and according to rules of mean term, product of variable is 0 means not, and 1 as it is. It if product of sum POS, 0 means simple and 1 means not, just reverse हो जाता है उसमें. Then in labeling of rows and columns in case of sum of product we labeled as follows. अब हम थोड़ा लेबल करके देखते हैं कैसे लेबल करेंगे. मैंने वो आपको समझाया था, और ये उसका बन जाएगा इस तरीके से. याद करो, मैंने बताया था ना आपको कि अगर अगर ये 0 0 होगा तो हम क्या करेंगे? इसको A नॉट B नॉट. 0 1 होगा तो A नॉट B. 1 1 होगा तो A B, और 1 0 होगा तो A B नॉट. इस तरीके से हो जाएगा. तो चलिए आगे समझते हैं. अभी आगे देखते हैं. यस, ये इस तरह से हमने लेबलिंग कर दी. अब आप देख रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है? ये क्या किया हमने? 0 0
A naught B naught, 0 1 A naught B, 1 1 A B, 1 0 A B naught. Same way 0 0 C naught D naught, 0 1 C naught D, 1 1 C D, 1 0 C D naught. ऐसे आपने लेबलिंग भी कर दी, ठीक है ना। अब लेबलिंग करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ो। वी कैन सी इट एज फॉलोज, हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि जीरो जो सेल है हमारा, उसके अंदर हम वेरिएबल्स को अगर शो करें तो क्या, कौन सी लोकेशन है, क्या है ये है ना A नॉट B नॉट C नॉट D नॉट। 15 को देख लो, 15 को देखो, इस 15 को देखो, 15 को देखो, क्या होगा ये A B C D। 12 को देख लो, क्या होगा A B C नॉट D नॉट, ये रहा C नॉट D नॉट, इसी के तो कॉलम में है। इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा बस ये आप तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम POS, वो तो था, ये अब तक जो था ये हमने सम ऑफ प्रोडक्ट का किया था, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट का किया था। अब इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम में उल्टा हो जाता है, तो हम कैसे करेंगे। वहाँ A B था तो यहाँ A प्लस B हो जाएगा। वहाँ 0 0 में A नॉट लगता था, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर 1 पर नॉट लगेगा। और यहाँ 0 1 A प्लस B नॉट, ये हो जाएगा। अब 1 1 है तो दोनों ही नॉट हो जाएंगे, उल्टा होता है इसमें, A नॉट प्लस B नॉट, वहाँ पर प्लस साइन नहीं था, वहाँ पर डॉट था। और यहाँ पर 1 0 यानी A नॉट प्लस B। सेम वे कॉलम्स में 0 0 C प्लस D, 0 1 C D नॉट, 1 1 C नॉट D नॉट एंड 1 0 C नॉट D, इस तरीके से। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाउ टू रिड्यूस बुलियन एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम यूजिंग के मैप। अब थोड़ा समझ लो। फर्स्ट वी हैव टू मार्क पेयर्स, क्वार्ट्स एंड ऑक्टेट्स to reduce an expression adjacent to ones are encircled. अब सम ऑफ प्रोडक्ट होगा तो जहाँ जहाँ नंबर होगा वहाँ वहाँ 1 1 1 1 भर देंगे हम बॉक्सेस में। तो अब वो जब भर देंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है या ऑक्टेट बन रहा है। तो ये क्या क्या है पेयर, ऑक्टेट एंड क्वाड, उसको समझ लो कि इफ 2 adjacent ones are encircled it makes pair, if 4 adjacent ones are circled it makes a quad, if 8 adjacent ones are encircled it makes octet. While encircling group of ones first search for, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि के मैप में वंस का जो हम सर्कल बना रहे हैं वो एडजेसेंट सर्कल वंस में ऑक्टेट बने। ऑक्टेट मीन्स 8 का ग्रुप बने। अगर 8 का नहीं बनता है तो 4 का बनाने की कोशिश करो, 4 भी नहीं बनता है तो पेयर बनाओ, ठीक है, ये मतलब है। ओके आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्टेट, जरा ऑक्टेट और क्वाड और पेयर के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि कैसे है। इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हमें कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप के मैप बना लोगे, नंबरिंग कर दोगे, लेबलिंग कर दोगे, और उसके बाद जब जो फंक्शंस में दे रखे होंगे आपके नंबर्स उनको फिलअप कर दोगे। तो देखो यहाँ पर देखो कैसे बन रहा है, 1 1 1 1 ये है, भर रखा है 1 1 1 1, इसमें 8 वंस हो जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सर्कल बना दिया है पूरा, इसको ऐसे बना दिया, क्लियर। ऐसे यहाँ पर भी इसको हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये ऑक्टेट 1 और ऑक्टेट 2 हो गया। और देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे भी हो सकता है, ये कंडीशन में भी हो सकता है कि कहीं पर भी वंस नहीं है और कहीं पर, तो किसको कवर कर रहा है, सारे चारों रोज को कर रहा है लेकिन 2 कॉलम्स को कर रहा है, इस कॉलम को और इस कॉलम को, लेकिन इधर ये पूरी चारों रोज को कर ले रहा है, ठीक है। तो इसको हमने पूरा सर्किल को कर दिया, इसको भी कर दिया हमने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, खाली इस तरीके से हो जाए, और देखें ऐसे भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, 1 1 1 1 इधर भरा हुआ है, सेम इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में, यानी रो, फर्स्ट रो ये और चारों कॉलम्स, और लास्ट रो और चारों कॉलम्स में बनना है। तो हम इसको ऐसे बना करके, इसको ऐसे बना करके, है ना, ये एक तरीके से आप फोल्ड टेक्निक है, फोल्डिंग टेक्निक। आप इसको ऊपर से पकड़ेंगे, अगर एक कागज़ का टुकड़ा हो, यहाँ पर से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ करके और यहाँ पर रखेंगे मोड़ के इस जगह। तो क्या होगा कि जो आपका 0 सेल, 1 सेल और 3 सेल और 2 सेल है, वो सीधा 8 सेल, 9 सेल, 11 सेल, 10 सेल के ऊपर आ जाएगा। तो ये 8 ग्रुप माना जाता है। ये भी सेम वे ऐसे ही आपका इधर देख लें, ये वाला ऐसे ही हो जाएगा। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ऑक्टेट कितने हो गए? 2 ऑक्टेट हो गए, 2 ऑक्टेट हो गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आगे चलते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड। अब देखो यहाँ पर हम ऐसी पोजीशन हो रही है कि 8 बन ही नहीं पा रहे कहीं पर भी, तो पॉसिबल 4 बन रहे हैं क्या, ये देखना है हमको। सबसे पहले ऑक्टेट देखना है, फिर क्वाड देखना है, फिर पेयर देखना है। तो आप यहाँ पर देखो, क्वाड 1 बन रहा है, देखो ये बन रहा है। क्वाड 2 ये बीच में बन गया, ये चार को कवर कर रहा है। क्वाड 3 ये देखो, ये 4 को कर रहा है ना। और क्वाड 4 ये बन रहा है पूरा। ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखो, जब हमने क्वाड 2 बना लिया, और क्वाड 2 बनाने के बाद क्वाड 3 में ये 1 और ये 1 बच गया। ये वाला जो है 1, ये तो दूसरे क्वाड 2 का पार्ट हो गया। तो ये 1 1 है और 3 का बनता नहीं है, या तो 2 का बनता है तो हम खाली 2 का ये बना देते, फिर ये 1 रह जाता, ये वाला कहाँ जाता, इसको ये छूट रहा था, है ना। तो इसको हम पूरे को कवर करने के लिए कॉमन एक 1 क्वाड 2 से ले लेते हैं, और इसको हम ऐसे बना करके पूरा बना लेते हैं। ये एक तरीका है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। जब 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं आए, पर आप थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा है समझने के में लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको ईजी लगेगा। वैसे तो कोशिश ये करते, मैं कहना भूल गया पहले ही, कि कॉपी और पेन पहले ले लो, और लेकर के जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, तो हैंड टू हैंड आपका हो जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, दोबारा से इसको देख लेना और उसको करना आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको ऐसे भी देखो, हो सकता है क्वाड कि फ्रंट पे हो गए 2, है ना, यानी ये हो गया इधर, तो इधर भी है, ये तो हमारा 4 का ग्रुप बन गया। ये हो गया इधर, तो ये हो गया इधर, 4 का ग्रुप बन गया। तो क्वाड 1 और क्वाड 2 हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक तरीका है, और भी ऐसे भी हो सकता है कि चारों कॉर्नर फिलअप हो रखे हों। तो ये हम इसको, यानी ये और ये, इनको हम 4 बन गए, इनको भी हम क्वाड 1 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसे? बच्चों जरा यहाँ से पकड़ो और यहाँ से पकड़ो, और इस बीच से इसको फोल्ड कर दो, तो क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा। सेम वे, अगर यहाँ से और यहाँ से इसको पिकअप करो, फोल्ड करो यहाँ बीच में से, तो क्या होगा, 0 सेल, 1 सेल, 3 सेल और 2 सेल जो है वो 8 9 11 10 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपका ये भी आपका क्वाड बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी।
देखिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स, ऐसे पेयर्स बना सकते हैं। 0 पर है, 1 पर है और 7 पर है और 15 पर 1 1 भरा हुआ है। इसमें और कोई तरीका ही नहीं है क्या करें इसमें, तो ये सही लिखा जाएगा, राइट। और देखिए ऐसे भी पेयर बन जाता है। देखो 1 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 15 पर है, ओके, 10 पर है 1 और 9 पर 1 है। अब देखो ये फ्रंट पर है, फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर जाएगा और ये भी फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे पर जाएगा, तो ये आपका पेयर बन गए। हाँ, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ये जो है ये पेयर नहीं बन सकता। लेफ्ट डायगोनल या राइट डायगोनल में अगर हो तो हम पेयर नहीं बनाएंगे, सिर्फ रो और कॉलम के लिए ऊपर ही बनाएंगे, पैरेलल होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका पेयर का हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा कि क्या हम देख रहे हैं इसको आगे। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो फंक्शन है ये एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा 0 1 3 5 7 9 10 11 12 13 15। अब हमें ये तो पता नहीं है कि सम ऑफ प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा आपको बताता है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये पहचान है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तो पाई का साइन होगा। तो ये ए बी सी डी जो है ये वेरिएबल्स हैं और ये आपकी वैल्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या कैसे करेंगे। तो आप याद करो स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, है ना, याद आ रहा है क्या करोगे, यस बनाओगे, फिर क्या करोगे, नंबरिंग दोगे, फिर क्या उसका जो फिर उसका क्या होगा, जो लेबलिंग करोगे, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी, ए बी, ठीक है ना। याद करो। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ हम ऐसा देखो करेंगे। यस, हमने हमने बॉक्स बना लिए। 16 क्यों बने, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं, ओके। नंबरिंग कर दी 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसी कॉलम में 0 0 0 1 1 1 1 0। लेबलिंग कर दो रो में, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी, ए बी और ए बी नॉट, है ना। ऐसी कॉलम में 0 0 है तो सी नॉट डी नॉट, 0 1 सी नॉट डी, 1 1 सी डी और 1 0 सी डी नॉट। अब आप नंबरिंग देखो यहाँ पर, ये जो नंबर्स हैं इसमें देखो 0 है, 0 पे हमने 1 लिख दिया, 3 1 लिख दिया, 5 1 पे भी लिख दिया 1, 5 1 लिख दिया, 7 ओके, 9 9 पर चले जाओ, ओके, 10 ये चले जाओ, टिक कर दो, 1 कर दिया, 11 12 11 12 12 पे लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 13 पर 1 लिखा, ये लिखो, 15 पर 1 लिखा, ये देखो। इतना करने के बाद अब आपको देखना है कि इसमें ऑक्टेट बनेगा क्या, पहले सबसे पहले देखना ऑक्टेट बनेगा क्या। यस बन रहा है ना, ये बन रहा है, ये ऑक्टेट बन गया। उसके बाद देखो क्या क्वाड बन रहा है, क्वाड तो बन नहीं रहा है। पेयर बनेंगे, हाँ बनेंगे। देखो पेयर कैसे बन रहे हैं, ये 1 हमको लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से ले लिया इसको, ऐसे यहाँ से ले लिया इसको, ऐसे यहाँ से ले लिया इसको, वरना बन नहीं पाएगा, अकेले छूट जाएंगे ये, क्लियर। और ये बन नहीं सकता क्योंकि बीच में गैप आ रहा है, एडजेसेंट होने चाहिए।
तो हमने इतना कर लिया, करने के बाद अब आप कैसे लिखोगे आंसर वो आप देखो। वी गेट 1 ऑक्टेट 3 पेयर्स, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑक्टेट 1 M1 प्लस M3 प्लस M5। ये M135 क्या है बेटा, कुछ नहीं है, ये इनकी जो वैल्यू है उन वो है। और स्मॉल m जो है सम ऑफ प्रोडक्ट में स्मॉल m लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम में कैपिटल M लिखते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि ऑक्टेट कौन सा ऑक्टेट है, तो ये पूरा बता रहा है कि कौन से को जिनको एक वो 1 को कवर कर रहा है उन सेल्स के नंबर्स को हम लिख देते हैं। और हम रिड्यूस कैसे करते हैं वो समझ लो थोड़ा सा। देखो रिड्यूस करके d आ रहा है ना, रिड्यूस करके वो d आ रहा है यहाँ पर, तो कैसे कर रहे हैं वो समझ लो, है ना। तो देखो यहाँ पर अब ये आप ऑक्टेट को देखो, इसको ऑक्टेट को इसको देखो, ये पहले ऑक्टेट को देखो। ऑक्टेट जो है पूरे चारों रोज को कवर कर रहा है ना। चारों रोज को अगर कवर कर रहा है ऐसे करके हम देखें तो ये वेरिएबल्स में इनकी पोजीशन देखो, सारे वेरिएबल्स की स्टेट चेंज हो रही है। ए नॉट बी नॉट हुआ तो यहाँ ए नॉट बी यानी बी की स्टेट चेंज हो गई, पहले बी नॉट था यहाँ पर लेकिन अब ये बी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ए भी चेंज हो गया, फिर ए बी नॉट चेंज, मतलब यानी चेंज हो रहे हैं वेरिएबल्स, चेंज हो रहे हैं। जब ये वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो जो वेरिएबल्स की स्टेट चेंज होती है उसको हम छोड़ देते हैं। अब ये तो रोज की बात हो गई, अब हम देखते हैं कॉलम्स की बात। इन कॉलम्स को हम देखें तो ये 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है, सी नॉट डी और सी डी। इसमें देखो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है क्योंकि सी नॉट था यहाँ पर और इसके बाद सी हो गया, नॉट हट गया। तो कौन सा आपका वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा वही हम उसको ले लेते हैं। तो कौन सा नहीं हो रहा, डी। तो इसलिए हमारा ये रिड्यूस एक्सप्रेशन जो है वो ये हो गया डी। क्लियर। ऐसे पेयर की बात कर लो, आओ जरा पेयर की बात कर लेते हैं। पेयर 1 कौन सा है, पेयर 1 M0 M1, M0 M1 कौन सा है बेटा, ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला। इसमें देखो जरा, ये एक ही रो को कवर कर रहा है बस और 2 कॉलम को कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें इसको तो ए नॉट बी नॉट ऐसे ही ले लेंगे, पूरा का पूरा कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, किसी का वेरिएबल का स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर सी नॉट डी नॉट सी नॉट डी, तो क्या डी चेंज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सी नॉट ले लेंगे। देख रहे हो आप, ऑक्टेट जब था तब हमारा जो आउटपुट आ रहा था एक वेरिएबल में आ रहा था, क्वाड अगर होगा तो 2 वेरिएबल्स में आएगा और पेयर होगा तो 3 वेरिएबल्स में आएगा आंसर रिड्यूस करते वक्त, ये भी है, ठीक है। तो हमने देखो पेयर 1 ए बी सी नॉट ले लिया। अब देखो फिर पेयर 2 ले लो, पेयर 2 यहीं पर ही है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। पेयर 2, ओके, पेयर 2 में ले लो। क्या करेंगे पेयर 2, देखो इसको कवर कर रहा है और इनको कवर कर रहा है, 2 कॉलम्स को एक रो को। तो क्या होगा, ए बी है ना, तो ए बी तो हम लिख ही देंगे, ए बी। और इन दोनों कॉलम्स में देखो कौन सा चेंज हो रहा है या कौन सा चेंज नहीं हो रहा, सी नॉट चेंज नहीं हो रहा, तो सी नॉट ले लो। तो पेयर 2 का ये आंसर हो गया, ए बी सी नॉट। देखते हैं ए बी सी नॉट, ठीक है। पेयर 3 ले लो, पेयर 3 में क्या होगा, ये देखो कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है और इनको कवर कर रहा है, तो ए बी नॉट तो ले ही लेंगे, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं किसको कवर कर रहा है, हाँ सी डी और सी डी नॉट, तो सी हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं आंसर, ठीक है, ए बी नॉट सी। द फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन इज, अब उसको हम ऐसे लिख देंगे, ये जो आया यानी क्या आया, डी आया था, ओके डी लिख दिया। आगे पीछे कैसे लिख सकते हो,
ए नॉट बी नॉट सी नॉट ये लिख दिया यहाँ पर, ए बी सी नॉट ये लिख दिया, बीच में प्लस लगा दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट है इसलिए, ए बी नॉट सी लिख दिया और प्लस का साइन लगा दिया। तो ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। अब मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ सम समझा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या है जरा वो समझ लो। मैं चाह रहा हूँ ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए आज। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। एफ ए बी सी डी पाई 0 1 3 5 7 11 14 15। इसमें देख लो, आप पहले क्या करोगे कि मैप बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या करोगे, नंबरिंग करोगे रोज की, 0 0 0 1 1 1 1 0 सेम एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसी कॉलम में 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आप लेबलिंग करोगे, लेबलिंग करो या नंबर डाल दो अपना बॉक्सेस में। लेबलिंग कर लेते हैं चलो पहले। तो क्या करेंगे, 0 0 क्या होगा, नॉट होता है ना, यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट में नॉट होता है, यहाँ पर सिंपल रहता है, यहाँ पर नॉट तो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या 0 0 ए प्लस बी है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम है इसलिए प्लस साइन लगेगा। 0 1 ए प्लस बी नॉट, यहाँ देखो 1 1 ए नॉट प्लस बी नॉट, यहाँ पर देखो 1 क्या होता है, नॉट होता है, यहाँ पर उल्टा होता है, ए नॉट प्लस बी। ऐसे 0 0 सी प्लस डी, 0 1 सी प्लस डी नॉट, 1 1 सी नॉट प्लस डी नॉट, 1 0 सी नॉट प्लस डी। इतना करने के बाद नंबरिंग डाल दोगे आप यहाँ पर 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। इस तरीके से आप पूरा कर लेंगे। अब क्या नंबर आता है देखो, अब नंबर आएगा आपका। नंबरिंग को हम कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पर देखो बेटे, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम 1 भरते थे, प्रोडक्ट ऑफ सम में जहाँ पर भी ये नंबरिंग दे रखी हैं उसमें 0 भर देंगे। हर चीज़ उल्टी हो रही है। तो 0 की जगह पर हमने 0 सेल पर हमने 0 भर दिया, 1 पर हमने 0 भर दिया, 3 नंबर है, यस 0 दे दिया, 5 7 11, ठीक है 5 7 11 कहाँ गया, ये रहा। ओके 14 15, 14 ये रहा और 15 ये रहा आपका, हमने यहाँ पर कर दिया। अब करने के बाद आप देखें इसमें कोई ऑक्टेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ऑक्टेट नहीं बन रहा भाई। तो यानी ऑक्टेट बनना हमारे लिए अच्छा है। ऑक्टेट बनना इसलिए अच्छा है कि वेरिएबल, एक वेरिएबल आएगा उसमें रिजल्ट में, ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऑक्टेट के बाद क्या देखते हैं, क्वाड देखेंगे। क्वाड देखो बन रहे हैं, एक तो ये पूरा बन गया क्वाड, एक ये ग्रुप बन गया इसका, ये बन गया, एक और नहीं बन रहा है। तो फिर और क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है क्या, हाँ पेयर ये बन रहा है और पेयर एक ये बन रहा है। तो 2 क्वाड 2 पेयर हो गए, राइट, यस। तो हम कैसे लिखेंगे, वही चीज़ तरीके से देखो, यहाँ पर क्वाड 1 M1 डॉट M3 डॉट M5, ये जितने हैं जो जिस चीज़ को कवर कर रहे हैं क्वाड 1, उसको लिख करके रिड्यूस कैसे करेंगे, ए प्लस डी नॉट क्यों आ रहा है, आप देखो ये जो है इसको कवर कर रहा है और इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, ए प्लस बी नॉट, बी चेंज हो रहा है, तो एक तो ए आ गया। और इसमें सी डी में देखो, डी नॉट सी नॉट डी, तो इसमें सी चेंज हो रहा है तो डी नॉट आ गया, है ना। और इसके अंदर प्लस लगा दिया, राइट, ठीक है। ये इस तरह से क्वाड 2 देखो, सी नॉट डी नॉट, क्वाड 2 सी नॉट डी नॉट आएगा, सी नॉट डी नॉट आएगा देखो। क्योंकि इसमें ये देखो, ये पूरा चारों रोज को कवर कर रहा है, तो इसमें तो स्टेट चेंज हो ही रही होगी, लेकिन ये इसमें एक ही कॉलम पर है, तो सी नॉट
प्लस डी नॉट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड 2 में ये आ गया। ओके, देखते हैं। ठीक है, अब पेयर 1 और पेयर 2 देख लेते हैं। पेयर 1 में क्या होगा, देखो पेयर 1 में, देखो पेयर 1 इस रो को कवर कर रहा है और 2 कॉलम को कवर कर रहा है, तो ए प्लस बी तो आ ही जाएगा, ए प्लस बी तो आ ही गया। इसके बाद इस सी प्लस डी और सी प्लस डी नॉट में देखो कौन सा चेंज नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, तो प्लस सी। तो फर्स्ट पेयर का ये आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। सेकंड का देखो क्या क्या, इसका देखो पेयर 2 का, आओ देखते हैं पेयर 2। पेयर 2 में इस रो को, है ना, पेयर 2 में इस रो को और इन 2 कॉलम्स को कर रहा है, तो ए प्लस बी, है ना, ए सॉरी ए नॉट, हाँ ए नॉट प्लस बी नॉट, और इसमें देखो क्या चेंज कर रहा है, या कहो कि क्या चेंज नहीं हो रहा है, सी नॉट, ये हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका पेयर 2 के लिए। देखते हैं, हो गया। और फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे कि क्वाड 1 का जो रिड्यूस होने के बाद आया उसको देख लो, ये आया, इसको यहां लिख दिया, ब्रैकेट में बंद किया, डॉट लगा दिया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है। दूसरा लिया, ब्रैकेट में लिख दिया सी नॉट प्लस डी नॉट, फिर डॉट, देन ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ब्रैकेट में लगाया और उसके बाद फिर इसको लिखा। ये आपका कंप्लीट आपका आंसर हो गया, ये कंप्लीट आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। फिर उसके बाद इस जो आंसर आया इसका आप लॉजिक डायग्राम और बनाना होगा, वो 1 मार्क्स का होगा। वो लॉजिक डायग्राम तो आप बना सकते हो अब, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और मैं देखता हूँ आपको, देखो फिर भी, है ना, समझ में आ गया आपको इस तरीके से। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ है, तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है, या मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप, आई होप इट इज़ क्लियर, और आप लोग खूब मेहनत करो, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आप ज़रूर इसको करो, क्लियर करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।